Today we will read the second section of second chapter in history because we are reading chapter second, the nationalism in India, and the second section of this chapter is differing strands within the movement. The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. You know, after the Rowlatt Act, in the previous section we have also read about the Rowlatt Act and the Khilafat movement. In the year of 1919, when the Rowlatt Act was enacted by the British imperial government and it was implemented in our country in the year of 1919, on 6th of April 1919, when the Gandhiji opposed the Rowlatt Act. And we have also read about the Jallianwala Bagh massacre, and it was held on 13th April 1919, and that time in our whole country all the section of the society protest against the British government and they wanted Swaraj for India. And today we will discuss the different strands within the movement. And the non-cooperation and the Khilafat movement began in January 1921, and the various social groups participated in this movement, and each with its own specific aspirations. And all of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. जैसा आप जानते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसकी शुरुआत जो है जनवरी 1921 में हुई थी, जिसमें विभिन्न जो सामाजिक समूह थे उन्होंने हिस्सा लिया था इस मूवमेंट में, और प्रत्येक जो सामाजिक जो वर्ग था उसके अपने विशेष जो है एस्पिरेशंस थे, और सभी ने जो है स्वराज के लिए कॉल किया और उसको रेस्पॉन्ड भी किया। लेकिन सभी जो टर्म थे अगर हम देखें तो अलग अलग जो थिंग्स थी या जो अलग अलग जो पीपल्स थे उनके लिए इसका मीनिंग जो था वो एक अलग था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड्स थी और सबको स्वराज जो है वो चाहिए था। द मूवमेंट इन द टाउन्स, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास participation in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. जब ये मूवमेंट का जो फैलाव है जो टाउन्स तक पहुंचा, तो मूवमेंट जो शुरू हुआ उसमें जो मध्यम वर्ग था उसने शहरों में हिस्सा लिया, और हज़ारों जो छात्र थे उन्होंने गवर्नमेंट जो स्कूल्स में पढ़ते थे उन्होंने स्कूल्स को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, और जो हेडमास्टर्स थे जो टीचर्स थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस के जो है वो छोड़ दिया था, और जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनको बॉयकॉट किया गया, उनका बहिष्कार किया गया था अधिकतर प्रोविंसेस के अंदर, केवल मद्रास को छोड़कर, जहाँ पर जस्टिस जो पार्टी थी, ठीक है, उस पार्टी ने जो नॉन ब्राह्मण्स थे उन्हें लगता था कि काउंसिल में प्रवेश करने का एक ही तरीका है जिससे हमें कुछ पावर्स मिल सकती हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है केवल ब्राह्मण्स जो है वो उसको एक्सेस करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिक्वर शॉप्स पिकेटेड and foreign cloth burnt in huge bonfires. The import of the foreign cloth halved between 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to 57 rupees crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. इसका जो प्रभाव हुआ नॉन कोऑपरेशन का जैसे मैंने आपको अर्थ बताया था कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग। क्या होता है? असहयोग। ठीक है, हिंदी में हम इसको असहयोग कहते हैं। जब हम किसी को कोऑपरेट नहीं करते
जब हम किसी का सहयोग नहीं करते हैं तो वो क्या कहा जाता है, असहयोग कहा जाता है। क्योंकि अब तक जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से सरकार के साथ एक असहयोग की नीति अपनाई गई और उस असहयोग का अर्थ था कि अब सरकार को जो है कोऑपरेट नहीं करना है बल्कि इसका विरोध करना है। तो इसका जो प्रभाव था वो आर्थिक मोर्चे पर भी जो है काफ़ी नाटकीय रहा और जो फॉरेन गुड्स था उनका बॉयकॉट किया गया, जो विदेशी सामान थे उनका बहिष्कार किया गया, लिक्वर शॉप्स थी, जो शराब की जो दुकानें थीं उनको पिकेट किया गया। पिकेट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। मतलब जब फैक्ट्री, ऑफिस या शॉप की एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पिकेट कहते हैं, ठीक है। और जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनकी होलियाँ जलाई गई थी और जो फॉरेन क्लोथ्स का जो इंपोर्ट था वो आधा रह गया। 1921 से 1922 के बीच में उनकी वैल्यू चीज़ जो थी वो गिर रही थी, वो 102 करोड़ रुपए से घट करके 57 करोड़ रुपए रह गई थी। कई स्थानों पर जो है व्यापारियों ने जो है व्यापार करना छोड़ दिया था और जो फॉरेन गुड्स था उसका व्यापार करना उन्होंने बंद कर दिया और फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करना भी बंद कर दिया था। जैसे ही ये बॉयकॉट मूवमेंट फैला तो लोगों ने जो है जो इम्पोर्टेड जो क्लोथ्स थे उनको डिस्कार्ड करना भी प्रारंभ कर दिया था, उनको पहनना भी जो है बंद कर दिया। इनमें भारतीय जो थे उन्होंने, और इंडियन जो टेक्सटाइल के जो प्रोडक्शन मिल से हो रहा था, इंडियन टेक्सटाइल मिल से जो प्रोडक्शन हो रहा था, हैंडलूम जो थे उन सबको उस समय फिर अपनाया गया। But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. Khadi cloth was often more expensive than mass-produced milk cloth and poor people could not afford to buy it. How then could they boycott milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. लेकिन ये जो मूवमेंट था धीरे धीरे जब शहरों में इसका विस्तार हुआ, ये फैला और इसके अलग जो है अगर हम देखें तो वैरायटी ऑफ रीजन्स से खादी का जो कपड़ा था जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था और उसका बहुत ही ज़्यादा उसको प्रोड्यूस भी किया जाता था मिल के अंदर, तो जिससे कि लोग जो गरीब लोग थे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। तो इस प्रकार से जो मिल्क क्लोथ्स था वो लंबे समय तक उसका बॉयकॉट कैसे किया जा सकता था, है ना। तो सिमिलरली उसी तरह जो है ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशंस थे उनका बॉयकॉट किया गया तो समस्याएं खड़ी हो गई, ठीक है। और जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है ये सब कुछ हो रहा था और इसके जो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे उनको सेटअप किया गया था और ब्रिटिशों के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है धीरे धीरे सब कुछ हो रहा था। तो स्टूडेंट और टीचर्स थे उन्होंने जो है दोबारा से अगर हम देखें गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है उन्होंने शुरू किया और जो लॉयर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट कोर्ट्स को वापस ज्वाइन भी किया। नाउ वी विल रीड रिबिलियन इन द कंट्री साइड। अब जो देहात क्षेत्र थे वहाँ पर जो विद्रोह की स्थिति रही उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट ड्रीव into its fold the struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war. तो शहरों से जो है असहयोग आंदोलन वो देहात क्षेत्रों की तरफ भी फैला और इसमें जो है जो संघर्ष कर रहे थे उसमें जो पीसेंट्स थे, ट्राइबल्स थे जो कि अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में विकसित हो रहे थे, ठीक है। तो कब, उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब उनका जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो एक तरीके से उनका जो विकास हो रहा था भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पीसेंट हों चाहे वो ट्राइबल्स हों, उन सब ने जो है अब संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। इन अवध पीसेंट वर लीड बाई बाबा रामचंद्र। अवध क्षेत्र में जो है किसानों का नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे बाबा रामचंद्र। ये सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर and the movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants
exorbitantly high rents and a variety of other cesses, and peasants had to do begar and work at landlords. Farmers without any payment. A tenants, they had no security of tenure and being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of begar, and social boycott of oppressive landlords. In many places, Nai, Dhobi, and Bans were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So when the non-cooperation movement began the following years, the effort of the Congress was integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked to sanction all action and aspirations. And in this section, we have also read about the Baba Ramchandra, and he was a sannyasi and who had earlier been to a Fiji, and after that he was an indentured laborer. The movement here was against talukdars in the Awadh regions and the landlords, and who demanded for peasants extraordinary high rents and variety of other cesses. ये अवध क्षेत्र में एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, और उसको लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, जो बाबा रामचंद्र थे वो उसको लीड कर रहे थे, और यहाँ पर जो पीसेंट्स थे, जो किसान काश्तकार थे, ठीक है, वो बेगार करते थे किसके, ज़मींदारों के यहाँ जो है वो बेगार क्या होता है, जिसके लिए कोई भी विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी वेतन के, बिना किसी भत्ते के जो है वो काम करते थे। जैसे ही वो उनसे कुछ उधार लेते थे, है ना, या उसको चुकाने के लिए उनको बेगार करना पड़ता था, और उनका उसको कोई पैसा भी नहीं मिलता था। तो इससे क्या हुआ कि उनके जो राइट थे जो लैंड के ऊपर वो कम होते जा रहे थे। ठीक है, तो जो ये पीसेंट मूवमेंट था उसमें ये जो है रेवेन्यू के ये डिमांड किया गया था कि जो रेवेन्यू है उसका रिडक्शन किया जाए, उसको कम किया जाए, अबॉलिशन ऑफ बेगार को समाप्त किया जाए, और उसका जो है सोशल बॉयकॉट किया जाए लैंडलॉर्ड्स का। ठीक है ना, जो कि उन पीसेंट्स को दबा रहे थे। तो बहुत सारे क्षेत्रों में अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहाँ पर नाई, धोबी और बंस जो है उनको संगठित किया गया था, पंचायतें बनाई गई थी, और जो जमींदार थे, ठीक है, जो उनके यहाँ सेवाएं प्रदान ये करते थे, चाहे वो नाई हो, चाहे वो वॉशरमैन, चाहे वो धोबी हो। ठीक है, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने जो है अवध के कुछ गाँव का दौरा भी किया था। तो उन्होंने जो है वहाँ के गांव वालों से बात भी की, और उनकी शिकायतों को भी सुना, और उनको समझाने का भी प्रयास किया था। लेकिन अक्टूबर से ही जो है अवध किसान सभा को जो है बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, इसके कुछ सदस्य भी थे। ठीक है, विद इन अ मंथ जो है करीब 300 ब्रांचेस, 300 शाखाएँ जो हैं गाँव के अंदर, उस रीजन के जो गाँव थे वहाँ पर उनको सेटअप किया गया था। और इसलिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ उन्हीं वर्षों के दौरान, तो जो कांग्रेस का जो प्रयास था कि किस तरीके से अवध जो पीसेंट है, अवध के जो किसान हैं, जो कि संघर्ष कर रहे हैं बहुत एक बड़े पैमाने पर, ठीक है, तो उस पीसेंट मूवमेंट को कैसे विकसित किया जाए। और कांग्रेस जो लीडरशिप थी वो इस बात से काफ़ी नाखुश थी, क्योंकि उस समय जो है जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था वो अपनी चरम पर था, और उसका काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहा था। और उसी समय जो है अवध जो किसान सभा थी उसके माध्यम से जो किसान भी जो है वो अंग्रेज़ जो है जमींदारों के खिलाफ खड़े हो गए थे। जैसे ही मूवमेंट 1921 में फैला,
तो जो ताल्लुकदार थे, जो जमींदार थे और जो व्यापारी थे, उनके घरों पर हमले किए गए थे, बाज़ारों को लूटा गया था और जो अनाज गोदाम से उनको कब्जे कर लिए गए थे। बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहाँ पर जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने पीसेंट से कहा था कि गांधी जी ने घोषित किया है कि कोई भी टैक्स नहीं देना है, ना कोई टैक्स पेड करना है भूमि के लिए, ठीक है, क्योंकि भूमि को जो है दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया गरीबों के बीच में। और गांधी का जो नाम था, महात्मा का जो नाम है, ठीक है, उसको इस तरीके से पेश भी किया गया था कि वो सभी एक्शन ले सकता था और सबकी उससे उम्मीदें भी थी, एस्पिरेशंस थे कि गांधी उस समय एक लीडर के रूप में उभरे और उन्होंने उस समय उस आंदोलन को एक नई दिशा भी प्रदान की थी। तो जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय और भी अनेक लोकल रीजन्स में भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट, पीसेंट मूवमेंट भी जो है चल रहे थे और उनसे जिससे कि सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ हो, चाहे वो ज़मींदारों के खिलाफ हो, चाहे वो साहूकारों के खिलाफ हो, ठीक है। ज़मीन को लेकर के किसान जो है उस समय विरोध कर रहे थे। ट्राइबल पीसेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way in the Goddam Hills of Andhra Pradesh. For instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. Here is the other forest regions. The colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. This enraged the hill people. Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. When the government began forcing them to contribute bigger for road building to the hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure. Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers and he could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Goddam rebel attacked police station, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. You know, अब हम जो बात कर रहे हैं वो ट्राइबल पीसेंट्स की बात कर रहे हैं, जो आदिवासी जो किसान थे, ठीक है, उन्होंने गांधी को एक मैसेज जो है इंटरप्रेट किया था और स्वराज का जो एक आइडिया था वो एक अन्य तरीका था। तो गोडैम जो हिल्स था आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, वहाँ पर एक मिलिटेंट गुरिल्ला जो है मूवमेंट जो है वो फैला था 1920 के दशक के शुरुआत में, ठीक है। तो ये एक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था। कांग्रेस जो है कांग्रेस ने उसको अप्रूव भी किया था और यहाँ पर जो है अन्य जो फॉरेस्ट रीजन्स थे, यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लार्ज फॉरेस्ट एरियाज़ को ब्लॉक कर दिया था या क्लोज कर दिया था, ठीक है। वहाँ के लोगों को रोका जाता था वहाँ प्रवेश करने से उन फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर जहाँ पर वो अपने पशुओं को चराते थे, ठीक है। जो वहाँ से फ्यूल वुड जो है वो कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। जो हिल पीपल्स थे जो उस हिल के आसपास जो है निवास करते थे, ना ही केवल उनकी जो जीविका थी वो प्रभावित हो रही थी, लेकिन उन्हें लगता था कि ये जो क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि हमारा एक ये पारंपरिक अधिकार है जिससे हमें वंचित किया जा रहा है। जब सरकार ने उनको दबाना प्रारंभ किया था तो उनको एक तरीके से उनको फोर्स किया गया था। फोर्स करना जब शुरू किया गया था तो उनको बेकार के लिए जो है उनका कंट्रीब्यूशन होता था, जैसे रोड बिल्डिंग में और अनेक जगह पर उनका यूज़ किया जाता था। इससे क्या है, उनके अंदर एक गुस्सा भड़क गया था। तो पर्सन्स जो कि अगर हम देखें तो जो उसको लीड कर रहे थे वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिगर थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने ये दावा किया था कि हमारे पास जो है बहुत ही विशेष शक्तियाँ हैं
ठीक है ना। उनको ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत ही विशेष शक्तियाँ हैं, ठीक है, और ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, है ना। और उसने जो है कुछ सही एक तरीके से ज्योतिषीय प्रेडिक्शंस भी उस लोगों के लिए किए थे, ठीक है ना। एक अनुमान उन्होंने लगाए थे, और उसने जो है बुलेट शॉट्स को में भी सरवाइव किया था। और राजू ने, जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, और उन्होंने एक तरीके से जो है विद्रोह का दावा भी किया, और वो अपने आप को भगवान का एक तरीके से दूत मानते थे। तो राजू जो है वो एक ग्रेटनेस को भी के बारे में बातें करते थे। महात्मा गांधी से वो काफ़ी इंस्पायर थे, ऐसा उन्होंने कहा था। इस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, और उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए जो है प्रोत्साहित भी किया। और इसके अलावा उसी समय जो है इंडिया में एक लिबरेट, अगर हम देखें, एक फ्रीडम होना चाहिए, और ये केवल जो है नॉन वायलेंस से नहीं आएगा, उसके लिए हमें जो है लड़ना भी पड़ेगा, है ना। हमें उसके लिए फ़ौज भी बनानी पड़ेगी, तभी हम जो है स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो गोडेम रिबेल्स में जब अटैक किया गया, उसके दौरान पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किए गए और ब्रिटिशों को मारा गया। ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनकी हत्याएं की गई थी, ठीक है ना। और उनकी हत्याएं करने के लिए, उनको मारने के लिए गुर्रिल्ला वॉरफेयर का यूज़ किया गया था, प्रयोग किया गया था, जिससे कि स्वराज को प्राप्त किया जा सके। बाद में राजू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, कैप्चर्ड किया गया था, और 1924 में उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो वो एक तरीके के एक फोक हीरो साबित हुए थे, ठीक है ना, अल्लूरी सीताराम राजू। और ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। आंध्रा के अंदर जो गुडेम हिल्स का एरियाज था, वहाँ पर ये अल्लूरी सीताराम जो है एक पीसेंट फिगर के रूप में, एक पीसेंट लीडर फिगर के रूप में उभरे। नाउ वी विल रीड स्वराज इन द प्लांटेशंस। वर्कर्स टू हैड their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For a plantations worker in Assam, freedom means the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the place from which they had come under the Inland Emigration Act of 1859. Plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations, and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. They, however, never reached their destination. Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. प्लांटेशन के अंदर स्वराज के बारे में हम बातें करेंगे, चर्चा भी करेंगे इस पर। तो वर्कर्स जो थे, ठीक है ना, वो ऐसा समझते थे कि जो महात्मा गांधी हैं वो स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, है ना। उनका जो मूल मंत्र है वो स्वराज है, और उसको प्राप्त करना है। तो जो प्लांटेशन वर्कर थे आसाम में, वो आज़ादी का मतलब समझते थे कि राइट टू मूव फ्रीली, कि हम आज़ादी से घूम सकते हैं, वही फ्रीडम है। और जो ऐसे स्थान है जहाँ हम नहीं जा सकते, जहाँ पर हमको रोका जाता है, हमको रिटेन किया जाता है, ठीक है ना, गाँव के अंदर, और हम ऐसे स्थानों पर नहीं जाते हैं। अगर हमको फ्रीडम मिल जाएगा, हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम जंगलों में जा सकते हैं, हम हर जगह आसानी से घूम सकते हैं, ठीक है। तो अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में ये एक्ट बना था। इसके अंतर्गत जो है प्लांटेशन जो वर्कर्स थे उनको टी गार्डन्स छोड़ने के लिए परमिट नहीं किया गया था, विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के वो टी गार्डन्स को नहीं लीव कर सकते थे। When they heard of the non-cooperation movement, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो हज़ारों जो वर्कर्स थे उन्होंने उस अथॉरिटीज़ को एक तरीके से वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ थी उनके आदेश का उल्लंघन किया, ठीक है, और प्लांटेशंस को छोड़ दिया, वो अपने घर के लिए चले गए, है ना। और उनका विश्वास ये था कि जो गांधी राज आ रहा है, जब गांधी राज आ रहा है तो उससे क्या है कि प्रत्येक को भूमि मिलेगी अपने गांव के अंदर ही, ऐसा उनको लगता था। इसलिए वो अब कभी भी
कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने डेस्टिनेशन को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब उनको ये लगने लगा कि अब गांधी राज आने वाला है, तो जब गांधी राज आएगा तो सबको ज़मीन मिलेगी और सभी अपने गांव के अंदर खेती करने लगेंगे, ठीक है, ऐसा उनको लगता था। तो ये जो तरीका था उस समय क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी विरोध कर रहे थे उस आंदोलन के दौरान। तो उस समय रेलवे और स्टीमर्स स्ट्राइक भी हुई और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा भी गया और बाद में काफ़ी क्रूर तरीके से उनकी पिटाई भी की गई थी। तो ये सब कुछ उस समय पूरे देश के अंदर घटित हो रहा था, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो, ठीक है, चाहे वो अगर आप देखें वेस्ट पार्ट हो इंडिया का या साउथ पार्ट हो, लगभग हर हिस्से के अंदर देश के हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है वो सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका था, जो गांधी चाहते थे, क्योंकि गांधी का उद्देश्य था लोगों को जगाना और उनके अंदर एक फ्रीडम का, एक तरीके से एक स्वतंत्रता के लिए एक मोटिवेशन पैदा करना उनका ये उद्देश्य था। तभी तो वो स्वराज की कल्पना कर रहे थे कि अगर हमको स्वराज चाहिए, मैंने जैसे पिछले सेक्शन में आपको बताया था, उन्होंने कहा कि अगर जो सरकार को यहाँ से खदेड़ना है या ब्रिटिश शासन को अगर समाप्त करना है, अगर भारतीय उनका सहयोग करना बंद कर देंगे तो 1 साल के अंदर जो है हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो जब धीरे धीरे अगर आप देखें शहरों से गांव में जब इस आंदोलन का विस्तार होता है और हर वर्ग का व्यक्ति इसके साथ जुड़ता है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, ठीक है, या व्यापारी है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने उसका जब आवाज़ें उठने लगी और सरकार का विरोध होने लगा, तो उससे जो है आंदोलन को एक गति मिल चुकी थी और पूरे देश के अंदर वो आंदोलन बहुत तेज़ी से जो है गति पकड़ रहा था। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आंदोलन किस प्रकार से उसकी आंदोलन समाप्ति की घोषणा होती है और आंदोलन जो है वो किस प्रकार से जो है उसको रिप्रेस किया जाता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग and all troubles would be over. Yet when the tribals chanted Gandhiji name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। ये जो विज़न था, है ना, ये जो दृष्टिकोण था इस मूवमेंट का, उसको डिफाइन नहीं किया गया था कांग्रेस प्रोग्राम के रूप में या कांग्रेस के कार्यक्रम के रूप में इसको परिभाषित नहीं किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस ने तो केवल इसको सपोर्ट किया था। जैसे मैंने बताया नागपुर अधिवेशन में 1920 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इसमें अप्रूवल मिला था, उसके बाद इसको और ज़्यादा जो है गति प्रदान की गई थी। तो उसको जो स्वराज जो एक टर्म था उसको इंटरप्रेट किया गया, अपने तरीके से इंटरप्रेट किया गया और उसमें जो कल्पनाएं थीं कि एक समय है जब लोग जो है वो गुजर रहे थे, मुसीबतों से गुजर रहे थे, ठीक है, और जो ट्राइबल्स थे उन्होंने गांधी जी के नाम से जो है कुछ स्लोगन्स जो है वो डिमांड किए थे, जैसे स्वतंत्र भारत जो शब्द है वो सर्वप्रथम उसी आंदोलन के दौरान उठाया गया था। वो इमोशनली जो है उसको एक तरीके से लोगों से जोड़ना चाहते थे, है ना, इमोशनली कैसे हम उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, और लोगों की जो एजिटेशन है, उनकी जो उत्तेजना है, उसको और ज़्यादा कितना प्रमोट किया जा सकता है। और जब ये सब कुछ जब वे एक्ट कर रहे थे तो वो सब कुछ महात्मा गांधी के नाम पर कर रहे थे, ठीक है ना, और इसको जो है लिंक किया गया था कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, और वे इसको आइडेंटिफाई कर रहे थे एक मूवमेंट के रूप में।